कृष्णा हरे राम 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 हरे। तो हम लोग है सेकंड कैंटो सेकंड चैप्टर में एंड विल कंटिन्यू द डिस्कशन। तो स्टार्टिंग में फर्स्ट जो हम लोग वर्स हम लोग ने खत्म किए लास्ट टाइम, सो वी एक्सटेंसिवली डिस्कस्ड। हम लोग ने ऑलमोस्ट 3 सेशंस में हम लोग वही डिस्कस कर रहे थे, कर्म कांड एंड रिलेटेड टॉपिक्स। तो कर्म कांड को रिजेक्ट किया गया वहाँ पे, एंड देन वी विल नाउ स्लोली गो टुवर्ड्स टॉपिक जहाँ पे सुपर सोल के बारे में चर्चा होना स्टार्ट हो रहा है। So let me just skip to that slide. What's number 8? Okay. Satish Prabhu, do you want to read this slide? Okay, Prabhuji. Srimad Bhagavatam, Canto 2, Chapter 2. Other consists of the personality of Godhead residing within the body in the region of the heart and measuring only 8 inches with 4 hands carrying a lotus wheel of chariot, a conchal and club respectively. His mouth expresses happiness, his eyes spread like the petals of the lotus, and his garments yellowish like the saffron of Kadamba. Kadamba flowers are bed cake with valuable jewels. His ornaments are all made of gold set with jewels, and he wears glowing headdress, hairdress and earrings. His lotus feet are placed over the walls of the lotus like a heart of great mystics. On his chest it is a Kostuba jewels engraved with a beautiful calf, and there are other jewels on his shoulders. His completely torso is garland with fresh flowers. He is well decorated with an ornamental wreath about his waist, and his rings studded with valuable jewels of his fingers. His leglets, his bangles, his oiled hairs curling with bluish tint, and his beautiful smiling face are all very pleasing. The Lord magnanimous pastimes and the glowing glancing of his smiling face are all indication of his extensive benedictions. One must therefore concentrate on his transcendental form of the Lord. As long as the mind can be fixed on him by meditation, the process of meditation should begin from the lotus feet of the Lord and the progress to his smiling face. Meditation should be concentrated upon the lotus feet, then the calves, then the thigh, and in this way higher and higher. More the mind becomes fixed upon the different part of the limbs one another, the more the intelligence become purified. Unless the gross materialistic develop sense of loving service unto the Supreme Lord, the seer of both the transcendental and material worlds, he should remember of meditating upon the universal form of the Lord at the end of his prescribed duty. Hare Krishna. हरे कृष्णा, थैंक यू प्रभु। तो पहले शुभदेव गोस्वामी जब बात करते ही स्टार्ट्स विथ विराट रूप पे मेडिटेट करने का, ही टॉक्स अबाउट इट एंड ही गिव्स एन एग्जांपल ऑफ ब्रह्मा जी जहाँ पे विराट रूप के मेडिटेट किया, एंड देन ही स्टार्ट्स पॉइंटिंग आउट द फ्लॉज इन कर्मकांड। तो कर्मकांड गलत है करके वो पहले के 7 वर्ष में बताते हैं। नाउ ही स्लोली मूविंग ऑन टू द ध्यान योगा पार्ट, जहाँ पे मेडिटेशन करके अपने सांसों को कंट्रोल करना एंड ऑल दो थिंग, जहाँ पे सुपर सोल परमात्मा पे फोकस फोकस करते, परमात्मा को रियलाइज करते हैं। तो उस पार्ट पे वो धीरे धीरे मूव कर रहे हैं। सो ही इज नाउ गिविंग द डिस्क्रिप्शन ऑफ द सुपर सोल। सो ही इज सेइंग दैट कुछ लोग सुपर सोल को हार्ट में जब कंसीव करते हैं, सो व्हेन दे सी हिम, ही इज लाइक ओनली 8 इंचेस, एंड उनके 4 हाथ है, मतलब ही इज लाइक चतुर्भुज विष्णु। तो उसमें चैरियट, कॉन्शेल, क्लब, लोटस फ्लावर। तो ये लेके वहां पे अपने हृदय में ही इज ऑलवेज वेटिंग देयर, ही इज ऑलवेज स्टैंडिंग देयर। तो उसके बाद ही इज टॉकिंग अबाउट डिफरेंट ब्यूटीफुल, ही गिव्स ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन ऑफ द लॉर्ड। तो कैसे वो इयर रिंग्स पहने उन्होंने, कैसे क्या किया है। तो वहां पे ही सेज ही इज येलोइश लाइक द सेफ्रॉन ऑफ द कदम्बा फ्लावर गारमेंट्स। तो कदम्बा फ्लावर को ऐसे मैं गूगल कर रहा था वैसे, सतीश प्रभु वॉज टॉकिंग, आई वॉज जस्ट मिसिंग, आई जस्ट शो हाउ इट लुक्स। सो दिस इज हाउ इट लुक्स, अगर आपको दिख रहा है तो। आई थिंक इट इज लिटिल ब्लड, तो Yes, blood Prabhu. एक सेकंड में उसको अभी फिक्स कर दूंगा। देखिए, तो दिस इज हाउ कदम्बा फ्लावर लुक्स।
तो ऐसे सेफरन कलर में हिज गारमेंट्स आर, ऐसे डार्क सेफरन में रहता है, दिस इज अपना भगवा टाइप कलर। और उसके बाद द वे ही इज वेयरिंग, उनके ज्वेल जो शोल्डर्स पे रहते हैं, बॉडीज पे रहते, पूरे बॉडी पे रहते हैं, ब्रेसलेट जो पहनते हैं, बैंगल्स पहनते हैं, जो पैर का जो पेंजन बोलते हैं ना, लेगलेट्स, वो सब पहनते हैं। तो ही गिव्स ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन ऑफ द सुप्रीम पर्सन ऑफ गॉड। तो ही सेज दैट जो मेडिटेशन है दैट गोज फ्रॉम द लोटस फीट ऑफ द लॉर्ड एंड अप टू द फेस ऑफ द लॉर्ड। और हम लोग टेंपल में भी, हमारे आचार्य क्या बोलते हैं, जब हम लोग टेंपल में जाते हैं, डीटीज को जब देखना है, द वे प्रोबादा कीप सेइंग दैट, जब देखना है द वे ऑफ लुकिंग एट इट इज, इवन हमारे ऑल्टर में जब हम लोग जो फोटो रहता है वहां पे राधा कृष्ण का, द वे ऑफ लुकिंग एट इज फ्रॉम द लोटस फीट स्लोली गोइंग अप टू हिज फेस, एंड दिस एक्चुअली हेल्प्स अस कनेक्ट विद कृष्णा। मतलब हम कृष्णा को, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डायरेक्ट देखने आते हैं, चेहरा देख के निकल जाते हैं आगे। बट जब हम लोग धीरे से धीरे धीरे ऊपर जाएंगे, वी आर स्टेइंग विद कृष्णा, एंड वी आर स्लोली एट ए वेरी हाई लेवल, एटलीस्ट वी आर एंग्रोस्ड इन लुकिंग एट कृष्णा, appreciating Krishna, his beauty. तो लेट्स सी व्हाट प्रभुपाद सेज इन ऑल दिस पर्पट 8 to 14 में। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन को समराइज किया है गौरांग प्रभु ने, सो आई हैव जस्ट पिक्ड अप फ्रॉम दैट। तो 8 श्लोका में ही सेज द साइज इज 8 इंचेस, और उनको 4 हाथ है, कंज रत्रांग शंख गदा, ठीक है, लोटस कॉन्शल वगैरह लेके। 9th वर्स में हाउ ही डिस्क्राइब्स, ही सेज माउथ एक्सप्रेसेस हैप्पीनेस, उनके चेहरे पे खुशी रहती है। उन क्या कैसे रहते हैं, लोटस पेटल जैसे रहते हैं। गारमेंट्स आर लाइक सेफरन ऑफ कदम्बा, एंड ज्वेल्स पूरे ज्वेल से डेकोरेटेड है। ऑर्नामेंट्स आर लाइक गोल्ड अगेन, स्टडेड विद ज्वेल्स। उनका हेड का जो ड्रेस है और इयररिंग्स है, हेड का मतलब जो मुकुट जो है और इयररिंग्स है, दे आर ऑल ग्लोइंग। 10th वर्स में बोलते हैं कि उनका लोटस फीट इज लाइक ऑन द लोटस हार्ट्स ऑफ मिस्टिक्स, जो मिस्टिक्स है, इट इज ऑल्सो फॉर डिवोटीज, जो मिस्टिक्स है उनका लोटस फीट उनके हार्ट में रखते हैं। बाद में उनके चेस्ट में इट इज कस्तूबा ज्वेल है, बाद में अदर ज्वेल्स और इन शोल्डर्स, एंड टॉर्सो इज गार्लैंड विद फ्रेश फ्लावर। बाद में 11th में वर्स में वो बोलते हैं कि ऑर्नामेंटल व्रेथ अबाउट हिज वेस्ट, रिंग स्टडेड विथ वैल्यूएबल जेल्स ऑन हिज फिंगर्स, उनके उंगलियों के बारे में, लेगलेट्स, बैंगल्स, ऑयल्ड हेयर। उनका बाल कैसे है, उन्होंने ऑयल, मतलब जैसे हम लोग यहाँ पे जेल लगा के हेयर को पूरा स्टाइल सेट करते हैं, वैसे उनके बाल को वहां पे उन्होंने सेट किया तेल लगा के। बाद में कर्लिंग्स है उनके बालों को, तो जहाँ पे सेट रहेगा, लेकिन यहाँ पे ऐसे कर्लिंग्स आते हैं उनके बालों के। तो विथ ए ब्लूइश टिंट, ब्यूटीफुल स्माइलिंग फेस, ऑल वेरी प्लेजिंग। ये फर्स्ट 11 श्लोकाज में है। और बाद में प्रभुपादा 8 श्लोका के परपट में बोलते हैं, द मेजरमेंट ऑफ द लोकलाइज पर्सनैलिटी ऑफ गॉड is estimated to expand from the ring finger to the end of the thumb, more or less 8 inches। रिंग फिंगर मतलब ये वाला फिंगर, और थंब तक, तो ये जो है मोर और लेस, दिस इज इधर से लेके इधर तक का डिस्टेंस जो है, इट इज अराउंड मोर और लेस 8 इंचेस। तो ऐसे ऐसे जब हम लोग पकड़ेंगे तो दिस इज द साइज ऑफ द सुप्रीम पर्सन ऑफ गॉडहेड, जो परमात्मा रूपी अपने हृदय में। The form of the Lord described in this verse with distribution of different symbols beginning from lower left, lower right hand up to the lower up and down to the lower left hand with lotus wheel of the right hand से लेके, तो राइट हैंड नीचे क्या है, लोटस है, बाद में राइट हैंड ऊपर क्या है, ये सुदर्शन चक्र है, बाद में लेफ्ट हैंड ऊपर क्या है, कॉन्शल, और लेफ्ट हैंड नीचे क्लब। तो इस तरीके से राइट से लेफ्ट तक गया हुआ है। इज कॉल्ड जनार्दन, और द प्लेनरी पोर्शन ऑफ द लॉर्ड हु कंट्रोल्स द जनरल मास। तो इस परमात्मा को जनार्दन भी कहा जाता है, बिकॉज ही कंट्रोल्स द जनरल मास। कंट्रोल इन द सेंस उनके कर्म, उनका कर्म को कंट्रोल करते हैं। ही नोट्स डाउन एंड देन ही अकॉर्डिंगली अरेंजेस फॉर द रिएक्शन। There are many other forms of the Lord with varied situation of the symbol of lotus, conch, etc. And they are differently known as, यही चतुर्भुज में और क्या क्या अलग अलग नाम है प्रभुपाद कहते हैं। वन इज पुरुषोत्तम, अच्युत्य, नरसिंह, त्रिविक्रम, ऋषिकेश, केशव, माधव, अनिरुद्ध, प्रद्युमन, संकर्षण, श्रीधर, वासुदेव, दामोदर, जनार्दन, नारायण, हरि, पद्मनाभ, वामन, मधुसूदन, गोविंद, कृष्ण, विष्णु, विष्णुमूर्ति, अधोक्षज एंड उपेंद्र। तो ये कृष्ण जो है, माय अंडरस्टैंडिंग इज, ये कृष्ण इज
अगेन दिस इज दैट इज वैकुंठ में भी वहां पे कृष्ण है अदर देन वृंदावन कृष्ण. सो ही इज इन चतुर्भुजा फॉर्म. These 24 forms of the localized personality of Godhead are worshipped in different parts of the planetary system. And in each system, there is an incarnation of the God having different Vaikuntha planet in the spiritual sky, which is known as the Paravyoma. Paravyoma मतलब spiritual sky. उसको Paravyoma भी बोलते हैं. Para मतलब higher. There are many other hundreds and scores of different forms of the Lord, and each and every one of them has a particular planet in the spiritual sky. भगवान के जितने हम लोग रूप देख रहे हैं, दे आर ऑल इटर्नल. भगवान के जो इनकारनेशन है, और हर एक के स्पिरिचुअल प्लैनेट्स है. In the of which this material sky is only a fragmental offshoot. ये मटेरियल यूनिवर्स जो है वो एक फ्रेगमेंट है पूरे इसके. द लॉर्ड एग्जिस्ट एज पुरुषा और द मेल एंजॉयर, ऑल्दो देयर इज नो कंपेयरिंग हिम टू एनी अदर मेल फॉर्म in the material world, but all such forms are advaita, non different from one another, and each of them is eternally young. तो हर एक जो फॉर्म है वो कैसा है, दे आर इटरनली यंग. एंड वो कभी उनको एज होता नहीं. और हर एक फॉर्म को, कृष्णा के हर एक फॉर्म को, दे हैव गॉट ए स्पिरिचुअल प्लैनेट. तो यहाँ पे उन्होंने 24 लोकलाइज फॉर्म के बारे में बात किया था, एंड दे से दैट दे आर इन द प्लान सिस्टम. सो जस्ट गिव मी अ सेकंड, लेट मी जस्ट चेक इफ आई हैव समथिंग टू पुल एंड शो, जहाँ पे उनके यूनिवर्सल फॉर्म को मतलब ये जो बताया वो प्लानिटरी सिस्टम को देख सकते क्या करके. वैदिक कॉस्मोलॉजी में let me share my other screen. Just let me know once you're able to see the Goloka chart. Yes, Prabhuji. जी. Yeah. यहाँ पे जूमिंग इन, तो हरि ये बोल है प्रभु जी. परम परम व्योम है. ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं अलग अलग फॉर्म्स है. सो दे ऑल हैव देयर डिफरेंट व्हाट यू से उनके स्पिरिचुअल प्लैनेट्स है. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे श्री गोविंद लिखा हुआ है. लेट मी पॉइंट दैट आउट. आर एबल टू सी यहाँ पे श्री गोविंद. तो दिस इज व्हाट इज रेफरेंट टू. ये 24 जो है विष्णु मूर्ति था. एंड आई बिलीव यहाँ पे कृष्ण भी कहीं रहना होना चाहिए. कुर्मा है, संकर्षण हो गए. जस्ट लेट मी. प्रभु, what you are referring to? I didn't understand. तो माता जी अभी हम लोगों ने पढ़ा था वहां पे 24 उन्होंने अलग अलग नाम लिए थे कृष्णा के, जो ये चतुर्भुज फॉर्म में रहते हैं. Hmm. वन सेकंड, लेट मी जंप टू दैट स्लाइड इफ एंड जस्ट हेल्प यू रिकलेक्ट दैट. ये देखिए यहाँ पे आर यू सीइंग दिस, प्रभुपाद सेज देयर आर मेनी अदर फॉर्म्स ऑफ द लॉर्ड. और जहाँ पे Hmm. पुरुषोत्तम, अच्युत, नरसिम्हा, ये सारे फॉर्म हम लोग ने पढ़े थे वहां पे. एंड ही सेज दैट these 24 arms of the localized personality of Godhead are worshipped in different parts of the planetary system. ठीक है, और हर एक का अलग अलग प्लानिट है. तो ये पार्ट को हम लोग Hmm. यहाँ पे देख रहे हैं. तो यहाँ पे गोलोका में, तो इफ यू सी ये सारे जो नाम पढ़े थे यहाँ पे है देखिए. सो गोविंद था तो गोविंद यहाँ पे. आई एम लुकिंग फॉर कृष्णा. यहाँ पे कृष्णा अगर दिख रहा है तो उनके भी वहां पे ही इज डिफरेंट फ्रॉम द वैकुंठ गोलोका कृष्ण. यहाँ पे कैन यू सी कृष्णा ओवर हियर, राइट साइड. Yes. If you can Yes. zoom in. ये देखिए कृष्णा. अब मुझे पता नहीं आप मेरा माउस देख पाते हो कि नहीं. Yeah, Prabhuji. Yes. Yes. So सो Shri दामोदर, Krishna is a sitting form, and he is Chaturbhuja. Now this Krishna is different from the Vrindavan Krishna. Okay, so हाँ. he is different Krishna. He is in Haridham. He is in Narayan Dham के यहाँ पे है. So he has a different planet. He is different from the Vaikuntha Krishna. तो वैकुंठ ये इतने 24 फॉर्म्स है
जो अभी प्रभुपाद ने बताए थे। सो दीज आर द प्राइमरी 24 फॉर्म्स चतुर्भुज में, जो हर एक प्लैनेट के साथ, हर एक प्लैनेट में रहते हैं, उनका खुद का प्लैनेट है। अदर देन दैट उनके पास अनलिमिटेड जो उनकी इनकारनेशन है, उनके भी प्लैनेट्स है बहुत सारे। सो दीज आर द प्राइमरी 24 एक्सपेंशन ऑफ द लोकलाइज फॉर्म। और ये जो है आगे यहाँ पे, दिस इज द वृंदावन कृष्णा। अगर आप मेरा माउस देख पा रहे हो, दिस इज द वृंदावन कृष्णा। Yes, सो दिस yes. इज इन गोलोका वृंदावन, दिस इज इन गोलोका। ठीक है। सो दिस कृष्णा इज, आई मीन, दो दे आर सेम, बट फ्रॉम द मूड, फ्रॉम द वे वी वर्शिप हिम, फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव, दे आर डिफरेंट। ठीक है। ही इज चतुर्भुजा, ही इज लाइक द मेजेस्टिक फॉर्म। और यहाँ पे दिस कृष्णा इज लाइक वेरी लवेबल गोपा फॉर्म, एंड इन इन ओनली द्विभुजा, नॉट चतुर्भुजा। ठीक है। Mm-hmm. ठीक है। Okay, दिस Prabhuji. इज व्हाट प्रभुपाद वाज सेइंग। सो दिस इज द फॉर्म। सो ये 24 नाम आपको यहाँ पे पूरे जो दिख रहे हैं वहां पे दिखाई देंगे। उसके अलावा भी आप बहुत सारे नाम देख पा रहे हैं, जैसे आप दुर्गा देखोगे, सो दिस दुर्गा, सरस्वती देखोगे, सो दिस यू विल ऑल्सो सी इंद्र ओवर हियर। सो दीज आर नॉट द मटेरियल इंद्रा, यू विल ऑल्सो सी गणेशा। सो दीज आर नॉट मटेरियल इंद्रा, मटेरियल गणेशा, दीज आर द स्पिरिचुअल फॉर्म्स। और यहाँ पे देखिए गणेशा, इफ यू कैन सी एट टॉप लेफ्ट। सो दीज आर द स्पिरिचुअल फॉर्म्स जो, जिसका रेप्लिकेट यहाँ पे मटेरियल फॉर्म में होता है। सो मटेरियल, यहाँ पे हम लोग जो गणेशा को देख रहे हैं, ही इज दैट इज ए पोजिशन। और हर एक सोल वहां पे, कभी कभार कृष्णा खुद वो पोजीशन लेते हैं। ब्रह्मांड पुराण में आई बिलीव देर इज एन इंस्टेंस जहाँ पे कृष्णा खुद आते हैं। कुछ जगह पे इट इज द, दे आर द, व्हाट यू से, एलिवेटेड, सो एलिवेटेड नहीं, दे आर द पायस सोल जिनको वो पोजीशन मिलता है। तो वैसे यहाँ पे इंद्र का भी यहाँ पे नाम रहेगा। सो दिस, दे आर द प्राइमरी डेमीगॉड्स का जो यहाँ पे हम लोग देखते हैं। सो एक्चुअल विष्णु फॉर्म इज इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड, और उनका रेप्लिका यहाँ पे बनता है, विच आर हु आर गिवन द प्राइमरी, व्हाट यू से, responsibilities. And these spiritual form Vishnu tattvas, they empower their corresponding demigods over here. ठीक है। सो यहाँ पे वामन देव है, वहाँ पे समवेयर इट इज इंद्र, वंद्र वराह अनंत। विल बाद में जब करेंगे हम लोग इसको थोड़ा सा, तभी देखेंगे, तो इंद्र भी रहेगा, दुर्गा भी रहेगी। सो दिस दुर्गा इज डिफरेंट फ्रॉम द स्पिरिचुअल, sorry, material Durga Devi. So she is the original spiritual Durga, Yog Maya. ठीक है, all good. तो let me Yeah, again, Prabhuji. let me go back to the purport. So this is what Prabhupada was referring. 24 primary forms है जिनके planets है, और they are all चतुर्भुजा। ये दो भुज सब चतुर्भुजा वाले, वामन वगैरह। एंड देन they, और उसके अलावा there are many other planets which cannot be shown on this on this गोलोकाल चार्ट। और ना ही उनके बारे में ज्यादा कुछ डिस्क्रिप्शन मिलेगा, बिकॉज दे आर अनलिमिटेड, वो रिकॉर्ड करना पॉसिबल नहीं है। सो दैट इज वाई ओनली प्राइमरी एक्सपांशंस एंड इनकारनेशंस आर मेंशन ओवर हियर। आगे प्रभुपाद पर्पट में बोलते हैं 8 वर्ष के, प्रभुपाद विश्वनाथ चक्र ठाकुर बताते हैं कि हैविंग शोन भक्ति एंड द प्रेजेंस एंड द एब्सेंस ऑफ भक्ति। पहले जो सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, जो एब्सेंस ऑफ भक्ति मतलब ग्रह मेदिस के बारे में बोला था, बाद में गृहस्थ में बोला था। Shukdev now speaks again about the process of dharana of the yogis on the form of Paramatma, जो ध्यान योगा के बारे में, which is superior to the universal form previously described। तो पहले यूनिवर्सल फॉर्म के बारे में बात किया, और अभी उससे एक स्टेप आगे जाके वो परमात्मा पे मेडिटेट करने का बात कर रहे हैं। ओके, विच इज सुपीरियर द यूनिवर्सल फॉर्म। और उसमें उन्होंने कर्मकांड का जो है उसको तो उन्होंने स्क्रैप कर दिया पूरा, कि उधर उधर जाना ही नहीं करके। तो बाकी जो कर्मकांड को भी फॉलो नहीं करके उनका तो चर्चा ही नहीं है यहाँ पे। सो वी आर नॉट इवन टॉकिंग अबाउट इट। तो सम, मतलब वहां पे केचित करके वर्ड यूज किया श्लोका में, तो सम रेफर्स टू दोज हु आर सुपीरियर टू द योगीज हु मेडिटेट ऑन द यूनिवर्सल फॉर्म, और टू दोज हु आर प्रैक्टिसिंग मेडिटेशन ऑन द रिजर्व फॉर्म विच हैज बीन डिस्क्राइब्ड, हैव बीन प्यूरिफाइड एंड देन मेडिटेट ऑन द स्पिरिचुअल फॉर्म परमात्मा। मतलब जो कचित के बात किया, तो दे आर ईदर who are directly meditating on the spiritual on the Paramatma form, and rather than the universal form, या फिर उन लोगों की बात किया जाए यूनिवर्सल फॉर्म से स्टार्ट किया, बट आगे जाके वो दे ग्रेजुअली इवॉल्व्ड एंड नाउ दे आर मेडिटेटिंग ऑन द परमात्मा फॉर्म।
सो देयर आर 4 टाइप ऑफ योगीज हु प्रैक्टिस धारणा। तो यहाँ पे 4 टाइप के बारे में बता रहे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। द फर्स्ट टाइप मेडिटेट्स ऑन द प्राण एंड द माइंड यूजिंग द फॉर्म ऑफ द लॉर्ड, दिस इज नॉट अप्रूव्ड बाय द भागवतम। तो जो है प्राण पे मेडिटेट करते विद सॉरी विदाउट यूजिंग द फॉर्म ऑफ द लॉर्ड, तो भागवतम ऐसे लोगों का चर्चा नहीं कर रहे, ठीक है। ये एक कैटेगरी है जो हम लोग ध्यानीस की बात कर रहे हैं। तो सिर्फ बोलते ना हम लोग यूजुअली ऐसे लोग बहुत सारे देखते हैं, हम लोग बोलते हैं कि एयर ब्रीद इन ब्रीद आउट, एयर पे फोकस करो। तो दे डोंट टॉक अबाउट द फॉर्म ऑफ द लॉर्ड। सो भागवतम तो उनको पूछ भी नहीं रहा है, बात भी नहीं कर रहा है। द सेकेंड फॉर्म जो है becomes becomes purified by meditating on the universal form described and then meditates on the four arm form of the Paramatma, गर्भोदक्षाय विष्णु। तो वो स्पेसिफिकली गर्भोदक्षाय विष्णु के बारे में बात कर रहे हैं, जहां से जिनके गर्भोदक्षाय विष्णु मतलब क्या है, उनका स्पेशलिटी क्या है, कोई बताएगा? विच वन इज गर्भोदक्षाय विष्णु आउट ऑफ द पुरुषा अवतारस? एनीवन? सतीश प्रभु, ममता माता जी? नहीं, कुछ स्ट्राइक नहीं हो रहा है। तीन तीन पुरुष अवतार के बारे में बता पाओ क्या है? व्हाट आर द 3 फॉर्म्स ऑफ द विष्णु? विष्णु मतलब जो पुरुष अवतार। क्षीरोदक्षाय क्षीरोदक्षा विष्णु Hirodakshaya Vishnu, विष्णु Garbhodakshaya Vishnu, गर्भोदक्ष and and third one is, sorry, I did not hear that. Satish Prabhu, you mentioned the third one as well. कारण Karnadakshaya दक्षा विष्णु। तो गर्भदक्ष विष्णु कौन से वाले? कारण दक्षा विष्णु से आते हैं। कारण दक्षा विष्णु का क्या स्पेशलिटी है, उनका प्राइमरी रोल क्या है? कारण दक्षा से क्या होता है? Karandaksha is in our soul, am I right? In our heart, as a Paramatma. नहीं, कारण ही इज द कारण, ही इज महाविष्णु। कारण दक्षा इज महाविष्णु। तो उनके इसके वहाँ, so from breathing, so there are millions of planets are coming out. यस, उनके पोर्स से, उनके स्किन के जो Yeah. पोर्स है उधर से मिलियंस ऑफ प्लैनेट्स है। हरि बोल। उसके बाद गर्भोदक्षा इज, उसके नॉवेल से जो ब्रह्मा निकलता है ना, लॉर्ड ब्रह्मा, हरि बोल। हाँ, द बेस्ट ऑफ रिमाइनिंग इज गर्भ। गर्भ मीन्स अपना वूम। तो नाभि। हाँ, नाभि। तो वहां से, नाभि से उनके जो ब्रह्मा आते हैं। सो दिस इज हाउ यू कैन रिमेम्बर। सो ब्रह्मा को जन्म देते हैं, उसके अलावा वो बाकी जो रॉ मटेरियल जो अंदर प्रोवाइड करना है वो भी प्रोवाइड करते हैं उनके स्टेम से, ठीक है, लोटस स्टेम से। एंड थर्ड वन इज यू सेड विच वन वाज दैट? क्षीरोदक्षाय क्षीरोदक्षा। और क्षीरोदक्षा का क्या है उनका? to be in the every heart, every एवरी soul. हार्ट, हरि बोल। एंड परमात्मा। परमात्मा। एंड ऑल्सो उनका और एक रोल है, ही इंटरेक्ट्स विद डेमिगॉड। जो हम लोग देवताओं के साथ जो देखते हैं, जो विष्णु आते हैं, जो देवताओं के हम लोग भागवतम में पढ़ेंगे, विष्णु आ गए थे, विष्णु चले गए, विष्णु को देखा। तो ये सारे विष्णु जो है, दैट इज क्षीरोदक्षा विष्णु। तो क्षीरोदक्षा विष्णु रिप्रेजेंट्स ऑल द विष्णु इन दिस मटेरियल तो वर्ल्ड। प्रभु जो ये विष्णु सहस्त्र नाम जो जपते हैं वो कौन से विष्णु के लिए है फिर? that is everything, that is विष्णु तत्व के लिए। तो विष्णु सहस्त्रनाम, इट इज नॉट स्पेसिफिक एज फार एज आई अंडरस्टैंड, इज नॉट फॉर स्पेसिफिक विष्णु। लेकिन जब विष्णु जो आते हैं, जो इंटरेक्ट करते हैं डेमी गॉड से, जो ब्रह्मा देवताओं के साथ चले गए तो ऊपर विष्णु लोक में प्रे करने के लिए, तो वो सारी चीजें कृष्ण को बुलाने के लिए, तो वो सब जो है वो क्षीरोदक्षा विष्णु के साथ होता है, ठीक है। सो ही इज द एक्सपेंशन ऑफ अनिरुद्ध। तो क्षीरोदक्षा विष्णु के साथ होता है। एंड ऑल्सो all the avatars that come into this material world, may it be Narasimha, may it be Krishna himself, जो भी है Vasudev Krishna and all, so when they come into this material world, they come through this Shirodaksha Vishnu. This concept is little difficult to understand, but just ऐसा समझ लीजिए कि he is like the gate. मतलब just for your understanding, this is not how it, but just for your understanding, he is like a gateway of all the Vishnu Tavatas to take incarnation on this material world. तो जो भी incarnation आएगा, it will be from that particular Vishnu, Shirodaksha Vishnu, ठीक है। that is how it works. So गर्भोदक्षा विष्णु और कारणदक्षा विष्णु से कुछ incarnation directly आता नहीं है। तो जो भी आता है, सो दिस विष्णु सेज कि आई विल इनकारनेट दिस आई विल इनकारनेट एज दिस। तो दिस विष्णु इज काइंड ऑफ ए is like the gateway of all the other incarnations to descend onto this material planet, ठीक है। So there are 3 principal roles that he plays. One is Paramatma, as you all said, one is interaction with demigods, and one is becoming kind of a gateway for
all the incarnations to take place into this material world. तो एक रहता है ना कभी अंडरस्टैंड दिस वे, तो यहाँ पे हम लोग जो ऑफिस में भी जब हम लोग किसी से इंटरेक्ट करते हैं और किसी सुपीरियर से मतलब किसी अपने मैनेजर के थ्रू, लेट से हम किसी बॉस से कनेक्ट हुए एंड हम लोग उनके वाया यूजुअली क्या करते हैं, हम लोग उनके वाया सब इंटरेक्शन करते हैं अगर हायर मैनेजमेंट करना है जिसको हमको एक्सेस नहीं है, और हायर मैनेजमेंट भी उनके वाया हम लोग को रिप्लाई करता है, राइट, उनके रेस्पॉन्सेज मिलते हैं. तो ही इज लाइक ए गेटवे, so he represents the higher management for us, right, and we cannot directly bypass and speak to higher management. It doesn't work like that, right? तो उसी तरह से let's say that this Shirodaksha Vishnu is like that particular role जिनके थ्रू हायर मैनेजमेंट से हम लोग इंटरेक्शन कर सकते हैं. सो ऑल दैट ईमेल्स वगैरह आते हैं इनके थ्रू आते हैं, वैसे ऑल द इनकारनेशंस इनके थ्रू आते हैं. ठीक है, इज दैट पार्ट क्लियर? हाई लेवल पे क्लियर हो गया कि कैसे होता है इनकारनेशंस? Yes, yes. Yeah, Prabhuji. Yep, जय हरि बोल. We had a discuss in the past also during COVID, I think, when ओ we हरि were बोल, हरि बोल. Goloka chat, na? मतलब अपने यहाँ पे हम लोग ने किया था क्या गोलो का चैट, कि आप दूसरे हाँ किसी प्रभु की? जी, हम लोग ने किया था ना मार्च हाँ, क्या? लास्ट कोविड के टाइम पे. ओ, गोलो का चैट नहीं किया रहेगा प्रभु, वी मस्ट हैव डन, बट यहाँ हम लोग ने मतलब हाँ, इसमें आ, कुछ उसके हम लोग ऊपर ने डिस्कशन यूनिवर्स किया था. अलग अलग, राइट, हम लोग ने हाई लेवल पे डिस्कस किया था. वी डिड नॉट डीप डाइव नहीं किया था हम लोग ने, बट यस वी हैड डिस्कस्ड मटेरियल प्लैनेट, स्पिरिचुअल प्लैनेट, हम लोग ने डिस्कस किया था, राइट प्रभु. शिवलोक, जय. So this is this that was Shirodaksha. Now this is Garbhodaksha Vishnu पे वो लोग meditate करते हैं. Now third type is after meditating on the universal form, he meditates on the Vyasakti Virat, the Lord in the heart with four arms. तो वो अपने हृदय में जो परमात्मा रूप है उन पे वो meditate करते हैं. And the fourth type is pure in heart already. Some say that Kachit refers to those who from the beginning being pure in heart meditate on the Vyasakti Virat in the heart. तो चार फॉर्म क्या हुए? एक है जो सिर्फ हवे ब्रीद इन ब्रीद आउट पे मेडिटेट करते हैं, जो आजकल के सब मेडिटेशन है, एंड भागवतम डजंट स्पीक अबाउट इट. सेकंड इज जो प्यूरिफाई होके गर्भोदक्ष विष्णु पे आते हैं मेडिटेट करने के लिए, प्यूरिफाइंग आफ्टर मेडिटेटिंग ऑन द यूनिवर्सल फॉर्म. थर्ड टाइप इज आफ्टर मेडिटेटिंग ऑन द यूनिवर्सल फॉर्म प्यूरिफाई होके वो परमात्मा पे आते हैं. And the fourth type is they are already purified and they directly Paramatma Rupi pe they are meditating. So these are the four type of yogis who practice dharana. There may be sub divisions sab ho sakte, but these are the four primary divisions. Pradesha matram sloka mein varta means the heart has a dimension of one pradesh. One meditates on the form which assumes that size in the heart of one pradesh. Although he is that size by his inconceivable energy, he has a form of a man 15-year-old, that is Santana Vyashi Kaishora. He is 15 years old, and Vasantam means he has made his residence there as Paramatma. तो भले वो 8 इंच के है, जो यहाँ पे प्रदेश बोला जाता है 8 इंच के है, but he is I mean more or less 18 inches. But he is at the same time he is 15 years old. He's always 15 years old. He was always in his Kishore form, and that is 15 years old, and he has made his residence over there in as Paramatma Rupi. So this is Vishwanath Chakravarti Thakur's description for 8 verse. हम लोग अभी जंप करेंगे एट 12th वर्स में, बाकी सब उनके ऑर्नामेंट्स के बारे में सब डिस्क्रिप्शन है. सो विल जंप ऑन द 12th वर्स which talks about one must therefore concentrate on this transcendent form of the Lord as long as the mind can be fixed on him by meditation. So यहाँ पे the process of meditation, okay, that has gone little. आप लोगों को ऊपर का दिख रहा है क्या? Okay, I can. Okay, the process of meditation recommended here is bhakti yoga, ये वर्ष में, or the process of devotional service after one is liberated from the material conditions. तो ये वर्ष जो है वो भक्ति योगा को उन्होंने पॉइंट आउट किया, मतलब सारा बोल के वापस भक्ति योगा कर रहे हैं. सो दिस इज द टिपिकल स्टाइल ऑफ प्रभुपादा एज वेल, राइट. तो प्रभुपादा कुछ भी वर्ष हो भागवतम में, भगवद गीता में, ही विल कनेक्ट देम ऑल टू भक्ति योगा. सो सिमिलरली यहाँ पे भी शुकदेव गोस्वामी, भले उन्होंने वहाँ पे उनको थोड़ा सा, क्योंकि वहाँ पे ध्यानिस भी थे वो ऑडियंस में, ही डजंट वांट टू डिसहार्टन देम सेइंग दैट ये सब बकवास है, ये क्या कर रहे हो, भक्ति योगा करो करके. He is also appreciating that, but at the same time is also
जेंटली मेंशनिंग दैट भक्ति योगा इज स्टिल द सुप्रीम करके। तो ज्ञान योगा इज द प्रोसेस ऑफ लिबरेशन फ्रॉम द मटेरियल कंडीशन। After one is liberated from the condition of material existence, that is, one is nivritta, as previously described here, or when one is freed from all the material necessities, one becomes qualified to discharge the process of bhakti yoga. तो भक्ति योगा के लिए क्वालिफाइड कब हो जाता है? जब हम लोग ज्ञान योगा से हम लोग कैसे खुद को मटेरियल चीजों से मुक्त कर पाएंगे, डिटैच कर पाएंगे हम लोग मटेरियल चीज से, निवृत्ति जिसे बोलते हैं। एंड देन वी बिकम क्वालिफाइड टू डिस्चार्ज द प्रोसेस ऑफ भक्ति योगा। इसलिए कहा जाता है जो भक्ति योगा कर रहे हैं उन लोगों ने ऑलरेडी पिछले जन्म में दे हैव ऑलरेडी स्पेंट मैनी थाउजेंड्स ऑफ बर्ड्स बेसिकली ध्यान योगा में, ज्ञान योगा में और कर्म कांड में, सारे सारे करके सारे होली धाम से नहा के भी के जब आए तब जाके भक्ति योगा को उन्होंने अभी दे हैव वी आर ग्रेजुअली। सो फॉर अस सीकर्स लाइक अस जो हम लोग इनिशियल स्टेजेस में, सो वी हैव आल्सो गॉन थ्रू देम एंड वी आर इन द ट्रांजिशन फेज। तो हमें अभी भी सारे धाम को जाना है, अभी भी हमें सब चीजें करना है, बट एट द सेम टाइम भक्ति योगा का हमें क्वालिफिकेशन मिला हुआ है। सो वी आर वेरी फॉर्चुनेट एंड दैट इज वाई आचार्य कीप सेइंग कि इसे वेस्ट मत करो करके। बाकी लोग अभी भी घिस रहे दे हैव लॉन्ग वे टू गो। तो वी आर इन द ट्रांजिशनिंग फेज। और जो प्योर डिवोटीज है, for them there is no need to visit dham, though they visit them, but there is no need to visit dham because they are the living dham. वो जहाँ पे वो धाम को प्यूरिफाई करता है, भागवतम कहते हैं वो गंगा को प्यूरिफाई करता है, वो धाम को प्यूरिफाई करता है, जो प्योर डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड है। they are in the matured stages of it. So we are in the very beginning in the transitioning stage, and we have to that's why we have to do the sadhana bhakti. सो साधना भक्ति में हम लोग जब करेंगे तो साधना को फॉलो करते 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 हम लोग बाद में हम लोग नेक्स्ट स्टेज में चले जाएंगे। ठीक है। सो दिस इज व्हाट इट सेज। सो वी आर फॉर्चुनेट दैट वी हैव क्रॉस्ड ऑल दोस थिंग्स। सो वी हैव टू नाउ स्टिक टू इट। हमें उसको लूज करके वापस पीछे जाना नहीं है। So therefore Bhakti Yoga includes Jnana Yoga and other yogas. ठीक है। So Bhakti Yoga automatically by the grace of the Lord effectively results in knowledge and renunciation. तो हम लोग देखेंगे, हम लोग देखते हैं कि गोपियों ने कुछ वेदा विदा पढ़े नहीं है, बट जब गोपी गीत करते हैं और जब उनका वार्ता दे समटाइम्स दे डोंट शो ऑफ, बट समटाइम्स जब प्रेज करना होता है, ओनली व्हेन दे वांट टू प्रेज कृष्णा, उनका जो नॉलेज है, यू कैन सी दैट दे आर एक्चुअली टॉकिंग हाईली फिलोसॉफिकल थिंग्स, जो वैकुंठ में अलग अलग फॉर्म्स एंड ऑल दोस थिंग्स, दे आर ऑलरेडी हैव नॉलेज ऑफ इट। बिकॉज भक्ति योगा जब कोई प्राप्त करता है ऑटोमेटिकली ये सब आ ही जाते हैं उनको, दे आर ऑटोमेटिकली एनलाइटेंड even if the devotee is not materially very well educated. Knowledge means knowing things as they are, and if by deliberation it is found that there are things which are at all unnecessary, naturally the person who has acquired knowledge leaves aside such unwanted things. तो प्रभुपाद कहते हैं इवन तो मटेरियली क्वालिफाइड नहीं है, अगर इसलिए आप अगर देखोगे हमारे पास काफी सारे ऋषियों ने काफी सारे सूत्रस लिखे हुए, दे इवन मेंशन, मतलब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, ऑक्सफोर्ड आई बिलीव, आई एम नॉट रॉन्ग, या कैम्ब्रिज किसी में, तो दे हैव पॉइंटेड आउट द वर्सेस इन वन ऑफ द सूत्रास वेयरइन दे से दैट न्यूटन की जो 3 लॉज है वहां पे ऑलरेडी मेंशन किए गए, न्यूटन के 3 लॉज। उसके अलावा काफी सारी चीजें हैं जो वहां पे ऐसे सारे ऋषियों ने ऑलरेडी कैप्चर्ड किए। ट्विन स्टार्स करके है, सो विच इज समवेयर विच कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आइज। तो ट्विन स्टार जो है, जो 2 स्टार है, जो मतलब हम लोग स्टार मतलब जो हम लोग जो दिखते हैं उसको स्टार्स बोलते हैं। सो दे हम लोग शायद नक्षत्र बोलते हैं। तो जो 2 स्टार्स एक दूसरे के इर्द गिर्द घूमते हैं, मतलब दे आर जस्ट रिवॉल्विंग अराउंड देमसेल्फ। यहाँ से दिखेगा भी नहीं, बट दैट नक्षत्र हैज आल्सो बीन मेंशन्ड, द स्टार हैज आल्सो बीन मेंशन्ड इन आवर वैदिक स्क्रिप्चर्स। और अभी जाके आफ्टर वी हैव गॉट दिस ऑल दोस टेलीस्कोप एंड ऑल, दे हैव काइंड ऑफ डिल्यूडेड कि ऐसे कुछ स्टार है करके, दे हैव कम अबाउट इट। सो वी हैव एंड दैट टू क्लियरली दिखाने हैं उनके जिस तरह से वो पैटर्न से, दे हैव कंक्लूडेड कि ऐसे ऐसा कोई स्टार है। सो हाउ इज इट पॉसिबल कि ये जहाँ पे टेलीस्कोप नहीं था, कुछ नहीं था, वूम के अंदर बच्चा, सोनोग्राफी नहीं था, वूम के अंदर बच्चा कैसे डेवलप करते हैं हम लोग आगे भागवतम में देखेंगे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 3rd कैंटो 8th कैंटो में कुछ है। तो
थर्ड आई बिलीव। तो 38 जो भी है, तो आगे तो कैसे हर एक दिन में, कैसे हर एक स्टेप कैसा है, बच्चा कैसे वूम में डेवलप होता है, क्या करता है बच्चा वूम में, पैर कब आते हैं, लेग्स कैसे आते हैं उनको, तो हम लोग देखेंगे किस तरह से उसको मेंशन किया गया है। बट हाउ इज दिस पॉसिबल? वहां पे अल्ट्रासाउंड नहीं था, कुछ नहीं था। तो ये हाउ आर ऑल दिस थिंग्स पॉसिबल? आयुर्वेदा में भी काफी सारी चीजें बताए। चक्षुरुन्मीलितम ये ना, मतलब हम लोग का अ, अ, तो जो आंखों के लिए जो एक सर्जरी का चीज है, जो कैटरेक्ट निकालने के लिए होता है, तो कैटरेक्ट निकालने जो सर्जरी का चीज है वो अपनी श्लोका में है, उसमें वो निकालने के लिए यूज होता है। हाउ इज दैट पॉसिबल कि वहां पे इतने सारे वो लोग डेवलप थे? दे वर हाईली एडवांस एट दैट टाइम। सो इवन दो दे डिड नॉट हैव दैट काइंड ऑफ material academic qualification, but they were all highly what you say knowledgeable. This is because when you are in bhakti yoga, when you go into the meditation bhakti yoga, atomic knowledge is आप में वो ऑटोमेटिकली वो नॉलेज आना, मैनिफेस्ट होना स्टार्ट कर देता है। बिकॉज हाउ व्हाट इज सोल? सच्चिद आनंद, चिद मतलब फुल ऑफ नॉलेज, तो वो नॉलेज मैनिफेस्ट करना स्टार्ट कर देता है। तो Prabhupada is saying the same thing over here. So when, and this is not just ऐसे किया हुआ है, we have this proof that what we just discussed, उन्होंने लिखे हुए हैं इन ऋषियों ने, and this is the still untapped knowledge। और उसमें से काफी सारे अनफॉर्चुनेटली were burned during this नालंदा जो फायर लगा था। कहते हैं कि 6 महीने तक आग लगा था, इतने किताब जले जले हुए। एंड अनफॉर्चुनेटली वी डिड नॉट हैव दिस मल्टीपल प्रिंट्स, बुक ट्रस्ट वगैरह जहाँ पे बहुत सारे बुक छपेंगे, तो वो लिखा जाता था हाथ से, लिख के उनके कॉपीज बनाए जाते हाथ से, और कुछ कॉपीज जो अलग जगह पे थे, फॉर्चुनेटली दैट हैज बीन सेव्ड। बट अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे ऐसे बुक्स थे विच वी जस्ट लॉस्ट इन दैट फायर। तो दे वर वास्ट नॉलेज, दे कंटेन्ड एवरी सिंगल नॉलेज। ऐसा कहा जाता है कि वेदास में ऐसा कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है जो वेदास के बाहर है। हम लोग अगर लगता है हम लोगों ने कुछ इन्वेंट करके कुछ बड़ा चीज किया है, तो ऐसा नहीं है। इवन इवन साइंटिस्ट दे आर सेइंग कि अपने वेदास में एरोप्लेन के बारे में बताया गया है, एंड दे हैव देयर इज अ वीडियो, देयर आर मेनी वीडियोस ऑन दैट बेसिकली, जो एरोप्लेन्स के बारे में बताया गया है। सो देयर आर मेनी थिंग्स दैट our rishis, because on meditating on the supreme law, slowly meditation say they were enlightened, and then they have returned on. But unfortunately many of this knowledge has been lost to us. So this is a proved thing कि जब हम लोग भक्ति करते हैं ऑटोमेटिकली ये सारी चीजें आ जाते हैं। उसके लिए मटेरियली एजुकेट होने की मतलब भले हम लोग मटेरियल हाईली क्वालिफाइड नहीं, फिर भी उससे फर्क नहीं पड़ता है। So when the conditioned soul finds by culture of knowledge that material necessities are unwanted thing, he becomes detached from such unwanted things. This stage of knowledge is called vairagya. So vairagya is not just छोड़ के मैं चला गया without any knowledge. This is not vairagya. क्योंकि बाद में उधर जाके भी हम लोग जो चीज को छोड़े उसके बारे में सोचेंगे कि मेरी बीबी क्या करती रहेगी, या वह यहाँ पे पैसा कैसे एंजॉय कर रहेंगे। तो we keep thinking about it, and then unfortunately we end up becoming one of the fraudster, जो हम लोग कुछ थोड़ा सा सिद्धि के बल पे हम लोग गालों को भोले गालों को फंसाते हैं। सो वैराग्य Prabhupada clearly says the stage of knowledge is called वैराग्य। और कौन सा स्टेज? जहाँ पे हम लोग जब एक लेवल पे जब नॉलेज हम कल्टीवेट करते हैं, वी अंडरस्टैंड दिस अनवांटेड मटेरियल थिंग, ये अननेसेसरीज को हम लोग अनवांटेड करके उसको हम लोग उससे डिटैच हो जाते हैं, एंड वी गेट अटैच्ड टू कृष्णा। सो दैट इज वैराग्य। तो Shukdev Goswami has suggested some alternatives for the bare necessities of life, namely the problem of eating, sleeping and shelter. उन्होंने लास्ट इसमें हम लोग ने पढ़ा था कि क्या उन्होंने किया था, हाथ है तो फिर पिलो की जरूरत क्या है, वो सब चीजें। बट ही हैज नॉट सजेस्टेड एनी अल्टरनेटिव फॉर सेल्फ सेटिस्फेक्शन। वन हु हैज द सेक्स डिजायर स्टिल विथ हिम शुड नॉट एट ऑल ट्राई टू एक्सेप्ट द रिनाउंस ऑर्डर ऑफ लाइफ। तो उन्होंने सुखदेव गोस्वामी प्रभुपादा ने हैज ब्यूटीफुली पॉइंटेड दैट आउट कि प्रभुपादा ने सॉरी सुखदेव गोस्वामी ने बताया था खाना खाना क्या कम है क्या, ये भी क्यों फल फल पेड़ों ने फल देना बंद कर दिया क्या, और ये क्या वो, तो काफी सारे बताया कि रेनाउंस लाइफ जीने के लिए नेचुरली सारी चीजें अवेलेबल है। सो व्हाट इज द चैलेंज? व्हाई आर स्टिल वर्किंग लाइक डोंकीज एंड ट्राइंग टू गेट ऑल दोस थिंग्स? तो और व्हाई आर यू गोइंग टू प्लेसेस कि वहां से लेने के लिए, लेकिन वहां पे सेक्सुअल डिजायर के लिए, सेक्स इज ऑल्सो वन ऑफ द नेचुरल थिंग दैट कम्स टू अस, राइट? उनके लिए लेकिन कुछ बोला नहीं है, बिकॉज देर इज नो अल्टरनेटिव टू इट।
So you have to vairagya matlab you have to overcome the sex desire. नहीं तो if you carry that with you, you are not a vairagi at all. There is no alternative to it. बाकी चीजों के लिए तो ठीक है, ये alternative है, वो छोड़ के तुम आ सकते हो. There is you can do that immediately. But for sex desire, there is no alternative. You have to overcome it. And one way that Prabhupada and Acharya has given is to think more about Krishna's. When we think about Krishna, his pastimes, जब हम लोग वो समझेंगे, then automatically these desires they वो धीरे-धीरे कम होके खत्म हो जाते हैं. So one who has the sex desire with him still should not at all try to accept the renounced order of life. One who has not attained to this stage, there is no question of a renounced order of life. So by gradual process of devotional service and under the guidance of proper spiritual master and following the principles of Bhagavatam, one must be able to at least to control the gross sex desire before one accepts the renounced order of life. तो शास्त्रों से और अपने आचार्य के गाइडेंस से, गुरु के गाइडेंस में आके, शरण में आके हम लोग एटलीस्ट ये सेक्स डिजायर को कंट्रोल कर सकते हैं इवन बिफोर टेकिंग द रिनाउंस ऑर्डर. सो प्यूरिफिकेशन मीन्स गेटिंग फ्री ग्रेजुअली फ्रॉम सेक्स डिजायर एंड दिस इज अटेन्ड बाय मेडिटेशन ऑन द पर्सन ऑफ द लॉर्ड एज पर्सन ऑफ द लॉर्ड. सो ये पर्सनिफाइड जिसको एक आखर है उसकी बात कर रहे हैं, पर्सन लॉर्ड के बारे में, तो उन पे मेडिटेट करना है. एज डिस्क्राइब हियर इन बिगिनिंग फ्रॉम द फीट, one should not try to go upward artificially without seeing for himself how much he has released from the sex desire. Shri Vishwanath Chakravarti Thakur clearly defines the import of purification as cessation from the sex indulgence. तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भी वही बोलते हैं कि purification मतलब cessation from sex indulgence. The conclusion is that those who are still entrapped by the sex indulgence should never progress to meditate above the feet of the Lord. Therefore, recital of Srimad Bhagavatam by them should be restrained to first and second canto of the great literature. So one must complete the purificatory process by assimilating the contents of the cantos, first 9 cantos. Then one should be admitted to the realm of the 10th canto of Srimad Bhagavatam. तो लोग डायरेक्टली 10th canto में जम करते हैं, और इसलिए शिला प्रभुपाद ने कृष्णा बुक लिखा हुआ है, क्योंकि लोगों को कुछ भी बोले, लोग वो लीलाओं के लिए जाएंगे. एंड व्हेन दे गो टू द पार्ट जहाँ पे रासलीला एंड हिज डीलिंग्स विद द गोपीज, people will unfortunately, जिनको नॉलेज नहीं, they will consider them as the mere material sexual this thing engagement. तो which is why Prabhupada कहते हैं कि पहले पैर पे आओ. पैर मतलब उनके पहले 2 कैंटो इज लाइक लोटस फीट, राइट, जो हम लोगों ने देखा था 10 कैंटोस किस तरह से. तो फर्स्ट 2 लोटस फीट आता, फर्स्ट 2 कैंटोस, तो नीचे से ऊपर को देखने, भगवान को देखने जाना है. हम लोग ने अभी देखा था, राइट, हम लोग ऑल्टर में भी देखते हैं, तो नीचे से जाके ऊपर जाना है. वैसे ही श्रीमद भागवतम, ये जो 10 कैंटोस है, दे आर लाइक his lotus feet are the first 2 cantos, then his knees are the 3rd and the 4th canto, waist are the 5th canto. तो इस तरह से लेके हेड तक 12th canto है, and his face is the 10th canto. तो ऐसे ही ऊपर तक जाएंगे हम लोग. तो उस तरह से श्रीमद् भागवतम को ऐसे ही नीचे से ऊपर पढ़ना है, जैसे हम लोग भगवान नीचे ऊपर पढ़ते हैं. तो पहले फर्स्ट 2 कैंटो से ही जाना है, और उधर समझ के बाद में 3rd 4th 5th जाके जब 9th कैंटो तक जाएंगे, उसके बाद ही 10th कैंटो को जाना है. तो 9th कैंटो तक हम लोग जब डिस्कस करेंगे, we will be in a better version of what we are now. Our desires will be purified when we study it, right? सिर्फ पढ़ना नहीं, जब हम लोग स्टडी करेंगे, जैसे हम लोग कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, तो we will be in a purified and we will understand what Krishna is, कृष्णा क्या है, कर भगवान क्या होते हैं. और वो अंडरस्टैंड करने के बाद जब हम इन पास्ट टाइम्स को देखते हैं, then we will be in a better stage to understand these past times in a better stage. Otherwise we will be misguided basically. So this is how Prabhupada says that we shouldn't jump. It is dangerous. What it is dangerous? अगर हम लोग करेंगे, then we will end up offending the Lord, and हम लोग खुद पे कुछ लेके बैठ जाएंगे. We will go into some kind of illusion. So we will take a pause here. Any questions so far? All good? So if no questions, then let me turn off the recording. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,